हमसे पंगा नको। दादा बॉस बनता है, बाय बेडू सब मुंबई, 'cause game our life, we play like Mumbai, we play like Mumbai. गुजरात टाइटंस नाम के आगे 2 अंक आ चुके हैं और अपना इम्पेकेबल रिकॉर्ड अगेंस्ट मुंबई एट होम वो बरकरार है। और सच्चाई है कि चौथा ये लगातार साल है जिसमें मुंबई इंडियंस अपने पहले दोनों मुकाबले हार के सीजन की कर रहे हैं शुरुआत। We are not quite professional in the field. We made some basic errors and at the same point of time execution, and I think that costed us maybe 20-25, which in a T20 game, I think it's a lot. The Mumbai Indians really will have to pull their socks up from the next match onwards. MI Paltan, are you ready for some fireworks tonight? क्योंकि आज का मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। आज मुंबई वहां उतरेगी जहां जीत का जुनून बहता है, जहां हर आवाज स्टेडियम के कोने कोने तक गूंजती है। You guessed it right, ये है हमारा घर, हमारी प्राइड। दिस इज वानखेड़े। और सामने चुनौती के रूप में कौन? Kolkata Knight Riders. Hello and welcome to MI Central. I'm Nidhi and we've got plenty to dive into tonight. But before we begin, here's what's in store for you today. टीम MI आज वानखेड़े में KKR के खिलाफ अपनी जीत के रिकॉर्ड में इजाफा करना चाहेगी। MI सेंट्रल ने रोहित शर्मा से मुलाकात की, जिन्होंने 5 बार की IPL चैंपियन MI के साथ अपने अनुभव को शेयर किया। A lot of things have changed, obviously, because I used to bat middle order then. Now I'm opening the batting. I was captain then. I'm not the captain now. So the roles have changed. A lot of things have changed. But the mindset has not changed. वहीं सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने महाराष्ट्र की जायकेदार डिशेस के साथ गुड़ी पड़वा का उत्सव मनाया। सर ने बनाया बटाटा वड़ा है, तो ये पहला खाना है। पहले खा बटाटा वड़ा, उसके बाद ये थाली पीट पीटने का ग्राउंड पे थाली पीट खा के पीटने का। और आज किन खिलाड़ियों के बीच होगी कड़ी टक्कर, जानेंगे MI सेंट्रल में। तो शो शुरू करने से पहले आइए टीम मुंबई के शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं। 5 बार की IPL चैंपियन ने चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगातार हार के साथ अपने 2025 के अभियान की शुरुआत की। लेकिन KKR के खिलाफ आज टीम MI के निशाने पर होगी इस सीजन की उनकी पहली जीत। Rohit. Well, these are the chances that are set to take over Wankhede tonight as the hitman steps on the field against KKR. Well, you know what? There's a very interesting fact that the hitman has scored over 2,000 runs at Wankhede in the IPL. But you know what? I have something very interesting for you. चलिए सुनते हैं हिटमैन की जुबानी, उनकी MI की कहानी। Here's Sharma. That's 50. Now it's along the ground. It's the first big one in the final. Oh, he was gone to play the shot. Magnificent strike. A brilliant 100. So obviously, from since the time I started to now, a lot of things have changed. Obviously, because I used to bat middle order then. Now I'm opening the batting. I was captain then. I'm not the captain now. There were few teammates who I played with and won championship. They are not there. They are in the coaching role now. So the roles have changed. A lot of things have changed. But the mindset has not changed. What I want to do for this team has not changed, which is to go out there and win games and win trophies. That is what MI is known for. All these years we've gone and won trophies, won games from a situation that no one ever believed. So that is MI, and that is what Mumbai is known for. Back-to-back titles for Rohit Sharma and his men. Those things have never changed. Like when you know that when you reach your room, the day you report to your room, everything will be laid out as it was laid out in 2011. Your kit bag, your suitcase with all the jerseys, and all the other necessary things. So those things have not changed in the last 15 years that I've been here, and I don't think it will ever change, and that it should never change. When you arrive, they are always there to greet you with that big smile. That has never changed, and that is very constant. So all those things are there. The way that team room has been shaped, with putting everyone's name, their jersey number, and
you know, those important phrases as well in the team room, that has never changed. I see a lot of buzz this year. From the time I came and joined, you know, I see a different energy with a lot of new guys who have come in. Guys like Tilak, Surya, Hardik, you know, all of us, you know, have played for this team before, and it's our responsibility, our duty to make sure that, you know, the environment is fresh, nice and healthy. जैसे तिलक वर्मा पहली बार जब टीम में आए थे, बहुत शाय थे, शांत बैठे बैठे रहते थे एक कोने में. अभी खुल गए, 3 साल से खेल रहे हैं इस टीम के लिए. तो अभी उन्होंने वो रोल लिया हुआ है कि सबको खोलना है मुझे. My immediate goal obviously is to try and bring the glory back to MI, win the trophy here. But we do understand, yeah, winning trophies is like, I want to win the trophy. It's very, it may sound अरे क्या है ऐसा ही बोल दिया. But हमको पता है कि वो ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है. बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में आनी पड़ती है. Because that is the challenge of IPL. I want to say that we will do the right things. If you will do the right things, you'll get what you are looking for. नए साल, नए सपने, नए इरादे. अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी नई चीजों की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल था गुड़ी पाड़वा. Here's wishing all our viewers a very happy गुड़ी पाड़वा. आपके फेवरेट स्टार सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने एंजॉय किया एक scrumptious Maharashtrian meal with a special guest. You guess who it was? Come, let's take a look. Oh my God! Look at this. Good to see you. गुड़ी पाड़वा का जो फीस्ट है, टिपिकल महाराष्ट्रियन गुड़ी पाड़वा का फीस्ट. मुंबई में हम दादर शिवाजी पार्क एरिया में हैं. ये एरिया क्रिकेट के लिए बहुत फेमस है क्योंकि यहीं बहुत सारे क्रिकेटर्स दे स्टार्टेड देयर लाइफ प्लेइंग ओवर हियर. व्हाट इज एंड यू बोथ रिप्रेजेंट अ मुंबई टीम, मुंबई महाराष्ट्र टीम लिटरली. एंड यू हैव ग्रोन अप इन मुंबई. आप तो यही ग्राउंड पे मैं बहुत सारा मैचेस भी खेला हूँ. और शिवाजी पार्क, वो बड़ा भी हो. हाँ, शिवाजी पार्क पे. अब क्रिकेट खेलते हो अगर आप बॉम्बे में और अगर आपने शिवाजी पार्क में क्रिकेट नहीं खेला है, मतलब फिर कैसे हो ही नहीं सकता. हाँ, वो बोलते हैं ना मातीतले क्रिकेटर. बरोबर. एक मुंबई की जो स्पिरिट है, नो, जो एक कैसे कॉस्मोपॉलिटन एम्ब्रेसिंग स्पिरिट है, सबको साथ लेके चलती है. मुंबई जो हमारी सिटी है वो करेक्ट, वो एक आपको मुंबई इंडियंस के टीम में भी दिखती है. अभी सर देखो, जैसा मुंबई का नाम पहले आता है तो मुंबई का नाम और फिर आगे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है कि नेवर से डाइड एटीट्यूड. कुछ भी होता है नेक्स्ट डे से मुंबई वापस अपने रास्ते पे रहती है, फास्ट एकदम लोकल के जैसा. सेम मुंबई इंडियंस टीम में भी वैसे 2008-9 से जो स्टार्ट हुआ है, इतना टाइटल जीते हैं. तो टाइटल जीते अलग बात है, लेकिन खेलना कैसा है ग्राउंड पे, अभी इतने लोग आते हैं देखने के लिए, वो तो एंटरटेन कैसे करना है क्राउड को. रिजल्ट कुछ भी हो, इस पे डेस्टिनेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपने को जर्नी पे ज्यादा ध्यान देना है, वैसा वाला. तो उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं. नंबर की बात किया हम लोग. और जब वानखेड़े में खेलते हो आप, वानखेड़े में तो मुंबई में तो कुछ अजीब अलग ही करंट एनर्जी, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी होता है. अब ग्राउंड पे उतरते हो, पता है गेम स्टार्ट होने वाला है, आप पहले से रेडी होके आते हो, और फिर जो क्राउड, ऐसा लगता है कि सब आपके साथ कंधे पे ही बैठे हैं. कुछ भी आप अगर हल्का, अभी गेम है, आप थक जाते हो, या कभी ऐसा लगता है अरे गेम ऊपर नीचे चल रहा है, तो याद दिलाते रहते हैं कि कैसे गेम निकालना है. तो बहुत रिच हिस्ट्री है एक्चुअली वानखेड़े का भी. आपको भी ऐसा लगता है कि अभी आप मुंबईकर बन गए हो? अरे मुझे जरूर लगता है, क्योंकि मैं काफी था बचपन में भी मुंबई में था, क्योंकि मम्मी का बहन इधर ही रहते थे, तो हर समर हॉलिडेज में मैं इधर रहता था. स्कूल का छुट्टी हो जाता था ना, तो 3 महीने इधर ही गुजरता था मैं. तो पहले से ही कनेक्ट है, दिल में है. विक्ट्री में साथ में होते हैं, लेकिन हार में कभी कभी नहीं होते. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? वो एक्चुअली यहाँ पे मुंबई कल्चर में और मुंबई इंडियंस का जो कल्चर है उसमें उल्टा है. इसमें जब हम लोग हार नहीं बोलते, या तो हम जीतते या तो हम सीखते. वाह, आइकन है. वाह, शाबाश. एक तरफ है हमारी मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स. ऑफ कोर्स देयर गोना बी प्लेंटी ऑफ फेस ऑफ्स, लेकिन कौन सी होगी वो की बैटल्स व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट टू अस? आइए नजर डालते हैं.
मुंबई इंडियंस इस सीजन की अपनी पहली जीत की तलाश में है। इस सीजन अपने पहले होम गेम के लिए तैयार मुंबई इंडियंस घरेलू मैदान में अपनी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है और आज कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होम एडवांटेज का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। 5 बार की आईपीएल चैंपियन टीम ने टाटा आईपीएल में 34 में से 23 मैच जीत अपनी बादशाहत का डंका बजाया है। वानखेड़े की बात करें तो 11 में से 9 मैच जीतकर टीम एमआई का प्रदर्शन और भी उम्दा रहा है। निगाहें हिटमैन पर होंगी जो इस सीजन मुंबई के पहले 2 मुकाबलों में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। मैजिक की शुरुआती झटका मुंबई इंडियंस के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि हिटमैन वानखेड़े में एमआई फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे, खासकर जिस टीम के खिलाफ वो 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। लेकिन इस शानदार सलामी बल्लेबाज को आज सामना करना होगा सुनील नरेन की चुनौती का, जिन्होंने हिटमैन को 8 बार टाटा आईपीएल में अपना शिकार बनाया है। केकेआर के पिछले मुकाबले में सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 97 रन बनाकर शानदार रन चेज के मास्टरमाइंड साबित हुए थे। वानखेड़े की कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ होने की वजह से कप्तान हार्दिक पांड्या केकेआर के सलामी बल्लेबाजों के बल्ले पर लगाम लगाने के लिए नई गेंद दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी को थमाना चाहेंगे। डिकॉक, बोल्ट और चाहर दोनों के खिलाफ रन बनाने में संघर्ष करते नजर आए हैं। बोल्ट ने केकेआर के सलामी बल्लेबाज को 9 पारियों में 6 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है, वहीं चाहर उन्हें 4 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं। तो क्या मुंबई इंडियंस की आखिरकार इस सीजन अपनी पहली जीत की तलाश खत्म हो पाएगी? And with that, we wrap up another episode of MI Central. But the conversations are far from over. So head to social media, drop your thoughts and predictions using the hashtag MI Central. और याद रहे, हर MI मैच डे पर सुबह 9 बजे हमारी मुलाकात होगी सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर। This is me, Nidhi Dugar, signing off.